Very good morning, students. Now, GPIC online class. Welcome to GPIC online class. And today I am discuss of the preparation of the acid because the previous lecturer or attends are all students known as the what is the acid, okay, activity series of the acid and basicity of the acid. Okay, three topics are completed and now today preparation of the acid, preparation of acid. ओके, ऑलरेडी कैसे हम प्रिपेयर्ड करेंगे एसिड को ये हम आपको देखते हैं अलग अलग मेथड से। ठीक है, नंबर वन है आपका, नंबर ए डाल लीजिए। डिफरेंट टाइप से प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल, ओके, नंबर वन नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल नॉन मेटल react with हाइड्रोजन। चाहे हाइड्रोजन पूरा लिख दीजिएगा और हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल, जो भी नॉन मेटल होगा, ओके, वो रिएक्ट करेगा इससे हाइड्रोजन गैस से और आपको क्या करेगा, प्रिपेयर्ड ऑफ द एसिड, वो एसिड प्रिपेयर करेगा। अब एनी नॉन मेटल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल Cl2, chlorine is a non-metal. Chlorine is a non-metal. So chlorine are react with hydrogen, so produce of hydrogen chloride. Okay, produce of hydrogen chloride. This is the acid. So names is the hydrogen chloride acid. Hydrogen chloride acid. Okay, students. ठीक है, now theory was created when chlorine react with hydrogen, so form हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जनरल नेम हो जाएगा, वैसे पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं ये क्या है, एज अ एसिड। ओके, now second example, when change of the non-metal, okay, direct combination of synthesis, if Cl2 against Br2, bromine react with hydrogen, so form is hydrogen bromide, HBr बैलेंस कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा। दिस इज द हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड acid. Okay, simple definition, the non-metal react with hydrogen, for example bromine react with hydrogen and form to give the hydrogen bromide. This is product or acid. Okay, now another example, sulfur 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 react with sulfur. Sulfur is a non-metal, so react with H2 and produce of hydrogen sulfide. General name of the hydrogen sulfide, it's form of the acid, so it is called the hydrogen sulfide acid. Okay, okay students. Any non-metal react with the hydrogen gas, so produce of the product form acid. Last suffix are created by the acid because the H2S, it is called the hydrogen sulfide. So suffix are add of the acid, so it is called the hydrogen sulfide acid. Okay. Now second. Now second, non-metal oxide, oxide, it's representative of oxygen, or the non-metal add is the oxide, react with water.
यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, फार्मूला लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं वाटर। ओके, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। व्हेन द नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव अप एनी प्रोडक्ट आर कॉल्ड एसिड। Okay, non-metal oxide, when the non-metal is the carbon atom and presence of the oxygen, it is called the carbon dioxide. It's non-metal oxide. React with water, react with water, water has formula H2O and give, यानी प्रिपेयर्ड करेगा आपका कंपोनेंट प्रिपेयर करेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3 are called carbonic acid, carbonic acid. Okay, now next time prepared for the non-metal oxide react with the water. So when carbon dioxide react with water molecules to give carbonic acid, okay, theory are contains of the any reaction concluding for the carbon dioxide react. This is called the reactant. This is called the product. Okay. Now next, non-metal oxide. Any non-metal oxide depends upon the sulfur. The sulfur are add of the oxide is oxygen. So SO2 sulfur react with बेटा किससे वाटर, तो यहाँ से वाटर क्या होगा रिएक्ट हो जाएगा H2O एंड प्रोड्यूस क्या फॉर्म करेगा H2SO3। इस H2CO3 यहाँ पर कार्बन यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर हो जाएगा H2SO3, H2SO3। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस OUS sulfurous acid. Okay, now SO4 is called the sulfuric acid. For sulfite, SO3 or react with the H2O and produce of the H2SO4. Okay, SO2 and different reactant SO3, one oxygen are added, this is called the SO4, one hydrogen H2SO4 called sulfuric acid. Sulfuric acid. Sulfuric acid. SO3. Next example is very important. Nitrogen dioxide react with water and form with the two products, nitric acid or nitrous acid. Nitric acid HNO3 plus HNO2. This is called nitric acid. This is called nitrous acid. Okay. Now two hydrogen react with the two hydrogen and two nitrogen. So it is called the twice oxygen 3 and 4. Balance कर लेंगे हम 2 oxygen 2 to 4 and 5 2 and 5. Nitric acid. Nitric acid. Nitrous acid. This reaction is very important reaction produced from nitric acid and nitrous acid. Both are very high acids. Okay. Now prepare for the acid.
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन आर property of the acid, property of the acid created by acid plus base produced from salt and water. Okay students, property of the acid में when the acid react with base and give the salt and water, ये हमेशा क्या करेगा, salt and water देगा। ठीक है, सिंपल इक्वेशन में अगर हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी हो जाएगी एसिड की। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड एंड बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, now react of the Cl and Na and form of the salt, simple salt NaCl. It is called a sodium chloride and hydroxyl group and hydrogen to produce of the water. Okay, names as sodium chloride. If any acids react with base to give salt and water, any reaction. For example, is the acetic acid. Acetic acid CH3COOH when react with any base like this sodium hydroxide, so produce of the sodium acetate because the hydrogen are loses of the acid and add of the OH. Okay, so now reaction are the created CH3COOONA. Okay, and now reduce of water, H2 is removed, H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। नेम क्लियर कर लीजिएगा, सोडियम एसीटेट। जो भी कोई भी मेटल्स आएगा तो उसका नेम पहले लिखा जाता है, ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट, एसीटेट, सोडियम एसीटेट। रिएक्शन आप कंप्लीट करते जाइए, एक एक रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको आ जाएगा वो। प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड में, प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड में नंबर 1, बाद में हम जब सॉल्ट की डिफिनेशन भी पढ़ेंगे तब भी आपको यूज होगा। बेस की भी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं तो बेस की भी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, एनी एसिड रिएक्ट विद द एनी बेस प्रोड्यूस ऑफ द salt and water. Okay, now next property number 2, acid property number 2, reaction of acid with, okay, reaction of metallic oxide with acid, यानी एसिड रिएक्ट करेगा इससे मेटालिक ऑक्साइड, मेटल का जो ऑक्साइड है उसी से आप रिएक्ट करेगा ये। ठीक है, मेटल ऑक्साइड लिख सकते हैं, पूरा आप लिख दीजिए, मेटल ऑक्साइड। ओके, when acid react with metal oxide to give salt and water also, salt तो कॉपर का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब रिएक्ट करना, ये क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। चलिए हम पहले एसिड ले लेते हैं, एसिड पहले लिखा हुआ है तो हम क्या ले लेंगे, कोई भी एसिड ले लेंगे। मान लीजिए सिंपल एसिड में आपके पास क्या है, HCl है, तो हमने HCl ही कर दिया, या इसको भी हटा दीजिए HCl। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लिया। अब ये सॉल्ट फॉर्म करेगा और H2O यानी वाटर भी होगा, तो वेट वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन कितना होना चाहिए बेटा, कम से कम 2, ये 2 ऑलरेडी हो जाएगा।
तो ट्वाइस H एंड 1 O ये क्रिएट कर देगा। जब ये कंप्लीट कर देगा ऑलरेडी, यहाँ पर ट्वाइस में Cl भी 2 हो चुका है, यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म करेगा तो CuCl2 CuCl2 ये आपका सॉल्ट हो गया, एंड 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एंड ऑफ द वाटर H2O। Okay, when the acid react with metal oxide to give salt and water, सेकेंड प्रॉपर्टी थी आपकी। सेकेंड नंबर थर्ड, ये एसिड बेटा कंपलसरी है, जिसकी प्रॉपर्टी होगी वहां पर ये कंपलसरी है, रिएक्ट करता जाएगा। ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्साइड होगा, ठीक है, रिएक्ट करता जाएगा कंपोनेंट से और नया प्रोडक्ट्स आपको देता जाएगा, कोई भी रिएक्शन हो सकता है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद, जैसे मेटल ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या मेटल कार्बोनेट लिख सकते हैं आप, कोई भी मेटल कार्बोनेट, जैसे ऑक्साइड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बोनेट, ठीक है। ये एसिड तो कंपलसरी है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर बनाएगा क्या आपका, आप लिख लीजिएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके स्टूडेंट, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट से जैसे ही होगा, यानी किसी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा, वाटर देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। कोई भी एसिड अभी हम ले लेंगे, उसी एसिड से हम निकाल लेंगे कि ऐसे कंपोनेंट, मान लेते हैं हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कोई भी मेटल कार्बोनेट, मान लेते हैं सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, या Na2CO3, ठीक है, इट इज कॉल्ड द मेटल कार्बोनेट लाइक दैट सोडियम, तो इट इज कॉल्ड द सोडियम कार्बोनेट। तो व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ sodium carbonate to produce or give off salt, ओके स्टूडेंट, पहले प्रोड्यूस क्या करेगा, सॉल्ट करेगा, तो सॉल्ट में हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये आपका सॉल्ट फॉर्म कर लिया। नेम सबका क्लियर लिख लिया करिए नीचे, जिसका भी नेम ना पता हो उसको आप नीचे लिख लिया करिए, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट to give of salt is sodium sulfate and produce, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर जाएगा, ये बन जाएगा H2O। अब यहाँ पर बेटा बचा क्या है, 1 ऑक्सीजन इसको इसने दे दिया, देखिए CO3 है और यहाँ पर H2 है, एक ऑक्सीजन दे दिया, बच गया H2O। अब यहाँ पर बचा क्या, CO2, ये लास्ट में आप यहाँ पर लिख देंगे CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी एसिड होगा, यहाँ पे HCl भी ले सकते हैं तो HCl से भी निकल आएगा, दूसरा कैल्शियम, कोई भी कार्बोनेट ले लेंगे हम, ठीक है, पॉज करके करते जाइए, हो जाएगा। थर्ड में है आपका कार्बोनेट, ओके। अब सेम अगर मान लीजिए हम कोई भी एसिड और ले लेते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं, अब इसकी जगह पर हमने सल्फ्यूरिक HCl ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये मेटल में तो कोई भी मेटल ले सकते हैं, चाहे सोडियम लीजिए, चाहे पोटेशियम लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए। अगर सोडियम पोटेशियम में कोई भी ले रहे हैं तो यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, HCl ले लिए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप K2 जैसे ये था, यहाँ पर आपने ले लिया पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब ऑलरेडी देखिए क्या, ये पोटेशियम है, ये कार्बोनेट है, यहाँ पर ट्वाइस है, इसको ट्वाइस कर देंगे हम, ठीक है। ये कैल्शियम और ये सॉरी पोटेशियम और ये क्लोरीन, ये मिल के आप हमारा बना देंगे सॉल्ट KCl, यहाँ पर ट्वाइस है तो ट्वाइस हो जाएगा।
अब उसी तरह बेटा वन ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इस हाइड्रोजन में मिल जाएगा। तो जब टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन मिलते हैं यहाँ को क्या बना देता है, H2O बना देता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा H2O, आपने लिखा भी है सॉल्ट वाटर, और प्लस यहाँ पर वन ऑक्सीजन चला गया तो बचा क्या आपका कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या बचा आपका कार्बोनेट, तो यहाँ पर CO2 रिमूव हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा आ जाएगा। When the hydrochloric acid react with the potassium carbonate to give up the salt, water and carbon dioxide, name as the potassium chloride, water and carbon dioxide. ओके, बहुत सिंपल, सारे एग्जांपल से आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल आप अपने से करिए, हम दे रहे हैं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब सेम प्रोसेस से आपको सॉल्ट बनाना है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग प्रिपेयर करिए। व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, प्रोडक्ट फॉर्म करिए, प्रोडक्ट फॉर्म करिए सभी लोग। बेटा यहाँ कैल्शियम है, ये क्लोरीन है, ये बना देगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ट्वाइस यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, 2 क्लोरीन और 1 कैल्शियम। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन उसी तरह चला जाएगा तो ये हो जाएगा H2O। वेरी गुड। एंड लास्ट में आपका क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ठीक है। बेटा अभी जब मैं आपको सॉल्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो उसमें एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, बहुत तरीके के सॉल्ट है, मिक्स सॉल्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अभी ये जब सॉल्ट अभी आपका आएगा तो सॉल्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्ट है ना। तो ये जैसे सॉल्ट तो दिया तो है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, इसके बाद भी आप NaCl देखा वो भी सॉल्ट है। तो जब टाइप्स ऑफ सॉल्ट आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि कौन सा सॉल्ट होता है, कैसा होता है। ठीक है, वो इसके बाद आ ही जाएगा आपको, जैसे इसके बाद बेस पढ़ेंगे फिर हम सॉल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप कर दीजिए, इसी में मैं चेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग अलग कर दीजिएगा। थर्ड हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 में आप कर दीजिए, 4 प्रॉपर्टी में एसिड वही रहने दीजिए, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट यहाँ कर दीजिए, इधर भी सेम रहेगा। मेटल, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, कोई भी होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा, कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट। तो यहाँ पर प्रोड्यूस में आपका सेम होगा, सॉल्ट होगा, वाटर होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सिंपल सा इसमें है, कोई भी अभी मैं ले रहा हूँ आपको बता दूंगा, इसमें आपको अपने आप आ जाएगा। एसिड में आप ले लीजिए HCl प्लस हाइड्रोकार्बन, कोई भी मेटल, मेटल बेटा होना चाहिए यहाँ पर, एम जरूर होगा। ठीक है, एसिड प्लस एम के साथ रहेगा, मेटल हाइड्रोकार्बन। तो मेटल में मान लीजिए हम ले लिए सोडियम, सोडियम के बाद हाइड्रो कार्बोनेट। ओके, इसमें ट्वाइस ट्वाइस नहीं करना पड़ेगा आपको, अपने आप सॉल्ट बन जाएगा। देखिए ये क्या होता है, मेटल, ये होते हैं नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल तुरंत क्या करते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर सॉरी आयनिक बॉन्ड होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव तुरंत बना लिया सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, देखिए यहाँ से Na और यहाँ का Cl ये ब्रेक हो जाता है, बना देता है सॉल्ट। जैसे ये बना दिया NaCl, ये क्या बन गया, सॉल्ट। अब वाटर देखिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन इससे ले लेगा, यहाँ पर बना देगा H2O। ओके, नाउ नेक्स्ट बचा क्या आपके पास, कार्बोनेट से 1 ऑक्सीजन लूज हो गया, यहाँ पर बचा CO, यहाँ पर हम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। देखिए ये रिएक्शन आपको धीरे धीरे आने लगेंगे, एक साथ तो आएगा नहीं। जब हम इसका भी स्ट्रक्चर बना लेंगे ना तो उस स्ट्रक्चर से आप बहुत अच्छे से
किसी भी रिएक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो कर लोगे कि बेटा ये क्यों माइनस में टूटता है, क्यों प्लस में टूटता है ना, कौन सा वीक होता है, कौन सा स्ट्रांग होता है, धीरे धीरे ये आ जाएगा। अभी आपको एकदम सिंपल इक्वेशन इसीलिए बताई जा रही है ताकि आपको कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, एकदम सिंपल इक्वेशन से ये सब चल रहा है। हाँ यस स्टूडेंट बताइए। हाँ बेटा, पीटी फर्स्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा। इसमें आपने पूरे रिएक्शंस जो पढ़े हैं 5 टाइप्स के, पूरा रिएक्शंस में जितना भी मैं फर्स्ट चैप्टर से बताया हूँ उसी में से आएगा। एक दो क्वेश्चन आपके जनरल क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है। मतलब जैसे फादर ऑफ द केमिस्ट्री हो गया, जो भी जनरल केमिस्ट्री से रिलेटेड है जो 8 तक आपने पढ़ा है, ठीक है। एनी कंपोनेंट्स ऑफ द मेटल्स और नॉन मेटल्स। और बाकी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके जनरल केमिस्ट्री से होगा, बाकी 8 क्वेश्चन जो होगा वो आपके फर्स्ट चैप्टर से होगा, जो भी हमने आपको लर्न कराया है, जो अभी आपके फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को आपको देख के वेरीफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन है।